Good morning, students. Today we are going to start our exercise 1.3 of chapter 1, Integers. Here we have question number 1. Find each of the following products, and in this question we have 10 different parts and I am doing 4 for you. Okay, rest you have to do in your homework. Now the part A is 3 into minus 1. Students, I have already told you that how we can multiply the integers. So you just have to use the same rule for this question, like 3 into minus 1 will give us minus 3. Okay, because 3 into 1 is 3 and plus minus is minus. Now in the E part you can see minus 15 into 0 into minus 18. As you can see, we have 0 over here, and when 0 is multiplied with any other integer it will give us 0. So answer will be 0. Now in the G part you can see we have 3 integers. So first we are going to multiply all the integers, like 9 into 3 into 6. And 9 into 3 is 9 3 are 27. And when 27 is multiplied by 6, it will give us 162. Okay. So in the number we have 162. Now we will move towards the sign. Now as you can see, 9 is of plus and 3 is of minus. So plus minus. Plus minus we have minus. And here we have again minus. Now minus minus is plus. So we have plus 162, or we can opt for the no sign, because plus means no sign. Okay. So minus minus is plus, therefore it is plus 162. Now the J part, we have 4 integers over here. Minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1. Now we will first multiply the digits only. 3 into 6. 3 into 6 will give us 18. Now 18 into 2. 18 into 2 will give us 36. Now 36 into 1 will give us 36 again. Now we will see about the sign. Now minus minus. Minus minus we have plus. And minus minus again we have plus. Sorry. Minus minus plus, again minus minus plus, and plus plus, you know it is plus. So it is plus 36. Okay. And in this way you have to do all the remaining part of the question number 1. So this is our question number 2. Verify the following, and we have 2 parts in it. And the part A is 18 into in bracket 7 plus minus 3 is equal to in bracket 18 into 7 plus in bracket 18 into minus 3. So we have to verify it. Okay. And as I've told you, for verification we have to prove the left hand side is equal to the right hand side. Okay. So first we will calculate that what is the LHS, left hand side. Okay. And then we will find that what is right hand side. And if right hand side is equal to the left hand side, we will write it as hence verified. Okay. Now first we have, in the left hand side we have 18 multiplied by 7 plus minus 3 bracket close. Now you can see when we solve it, 18 multiplied by 7 plus minus is minus 3, isn't? Now 18 when multiplied by 7 minus 3 will give you 4. Okay. And 18 into 4 will give you, 18 into 4 is 72. So in the left hand side we have 72. Now we will calculate the right hand side. And in the right hand side we have 18 multiplied by 7 plus 18 multiplied by minus 3. Now again we will first multiply 18 into 7. And 18 into 7 is 126 plus 18 into minus 3. So we will first multiply 18 by 3. And 18 into 3, you know, it is equal to the 54. But as you know, plus 18 and minus 3 will give you minus 54, isn't? 18 into 3 is 54 and plus minus is minus, therefore minus 54. Now we have to calculate this. So 126 plus minus is minus 54. And 126 when 54 when subtracted from 126, we will get 72. So as you can see here,
in the left hand side we have 72 and in the right hand side we have 72. So as you can see, left hand side is equal to the right hand side. So in this way we have verified our answer. So इसके नीचे आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड फिर आप लिखेंगे यहाँ पे हेंस verified. Okay, and in the same way you have to do the part B. Now we are moving to question number 3. Question number 3 have two parts. The first one is, for any integer a, what is minus 1 into a equals to? So we have to find the answer of minus 1 into a. You know, when 1 is multiplied by a, it will return us the number. So 1 when multiplied by a, it will give us a, and minus, it is of plus, है ना? So minus plus is minus. So answer will be minus a. Now we are moving to the part A of second part. See student, determine the integer whose product with minus 1 is minus 22. We have to find the integer whose product, that means multiply, with minus 1 is, in the first part we have to find it is minus 22. So we have to find this number which will multiply by minus 1 will give us minus 22. So as you know, when a number is multiplied by 1, it will give us a number itself. So 1 से इसे क्या multiply करेगी, 22 आ जाए बेटा. तो you know that 22 when multiplied by 1 will give us 22. Now look at the sign students, plus, it is of plus, plus minus is minus. So sign are also verifying in both of the side. Therefore the answer is plus 22. We have the answer as 22. Okay, 22 when multiplied by minus 1 will give us minus 22. Now in the second part you can see that which number when multiplied by minus 1 we will get 37. So as you know, 37 when multiplied by 1 will give us 37, isn't? But with the sign, as you can see, plus minus, we have minus in our answer, but we have to get plus 37. देखिए आ क्या है, plus minus is minus, but यहाँ है क्या, plus का 37 है, so we can put minus 37, isn't? Because minus minus is plus, so our answer is minus 37. Now in the third part, we have to get 0. So which number when multiplied by minus 1 will give us 0? As you know, we can get 0 in our answer by multiplying the number simply by 0. So 0 is the number which when multiplied by minus 1 will give us 0. So in the third part, our answer is 0. So in this way, you can do all such questions. Now we are moving to question number 4. Now question number 4 is, starting from minus 1 into 5, write various products showing some pattern to show minus 1 into minus 1 is equal to 5. बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग को स्टार्ट करना है minus 1 into 5 से, एंड एट द एंड हम लोग को पहुंचना है minus 1 into minus 1 is equal to 1 तक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. minus 1 into 5 पैटर्न हमें क्रिएट करना है. ओके, नाउ minus 1 into 5 will give us minus 5 as you know, because 1 when multiplied by 5 will give us 5 and minus plus is minus. नाउ द नेक्स्ट पैटर्न हमें बेटा यहाँ तक पहुंचना है. देखिए ठीक है, -1 सेम है यहाँ पे, यहाँ हम लोग को 5 की जगह -1 तक जाना है और यहाँ पे -5 की जगह 1 तक पहुंचना है. तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न इसके अकॉर्डिंग बनेगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं. 5 के बाद हम लिखते हैं 4. नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव अस -4, इजंट? व्हेन -1 मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, 5 के बाद 4 है, अब 3 लिख रही हूँ. नाउ -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल गिव अस -3. -1 when multiplied by next क्या आएगा 2, it will give us -2. -1 when multiplied by 1 it will give us -1. Now next -1 when multiplied by 0 it will give us 0. इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, देखिए यहाँ 0 आ गया. 0 के नीचे नेक्स्ट क्या होता है, 0 से छोटा होता है -1. So -1 when multiplied by -1 it will give us, now 1 when multiplied by 1 it will give us 1 and minus minus is plus, so therefore it is +1. So हमें यही पैटर्न एक क्रिएट करना था. हम लोग को स्टार्ट करना था -1 into 5 is equal to -5 तक और रीच करना था हमें -1 into -1 is equal to 1 तक. So this is the complete pattern that you have got, starting from -1 into 5 is equal to -5 to -1 into -1 is equal to 1.
Now question number 5 is find the product using suitable properties. And the part A is 26 into minus 48 plus minus 48 into minus 36. So in this question we have to find the product using the properties that we have read in our earlier video. Now as you can see that we having two terms. Now कैसे two terms में बोल रही हूँ बेटा, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो होते हैं वो एक टर्म बन जाती है, लाइक ये आपकी कंप्लीट एक टर्म है एंड सिमिलरली यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये कंप्लीट एक टर्म है, ठीक है। प्लस या माइनस से टर्म्स क्या होती है, सेपरेट होती हैं। तो आपने देखा है कितने टर्म्स है, एक ये टर्म हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो टोटल कितने टर्म्स हुए यहाँ पर 2 हो गई जो कि प्लस से सेपरेट हो रखी है। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में कौन सा नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब सेम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस टर्म में भी माइनस 48 है और इस टर्म में भी माइनस 48 है, इज इट। तो हम क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस 48 हम ले लेंगे इन दोनों में कॉमन, ओके। सो वी विल टेक माइनस 48 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स। अब देखिए जब हमने माइनस 48 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया है तो इस टर्म के पास क्या रिमेनिंग है, 26। सो वी विल राइट हियर 26। अब देखिए ये तो कॉमन जा चुका है, अब क्या है यहाँ पे प्लस, सो वी विल पुट हियर प्लस साइन। सेम इन द सेकंड टर्म यू कैन सी दैट वी हैव टेकन कॉमन माइनस 48। अब रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, माइनस 36। सो आई विल राइट हियर माइनस 36 इन द अदर ब्रैकेट, ओके। नाउ एज यू कैन सी द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर इज distributivity of multiplication. So I will write it here using distributivity of multiplication. Okay, you have to write in the single line as I am having unavailability of the space, as you can see. Now minus 48 will be here. पहले हम लोग क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो ये आपके स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारे बिग ब्रैकेट्स होते हैं। तो पहले हम बिग ब्रैकेट्स अपने सॉल्व करेंगे। सो एज यू कैन सी 26, इस ब्रैकेट के अंदर भी प्लस माइनस हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस 36, ओके। नाउ अगेन हम लोग को अपना स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व करना है। माइनस 48 विल रिमेन सेम, बट 26 माइनस 36 इट विल गिव अस माइनस 10। हाउ, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस तो हम कर देंगे और साइन प्लेस करेंगे हम लोग जो कि लार्जर डिजिट है। तो लार्जर डिजिट कौन सी है, 36, माइनस का साइन के साथ है तो माइनस का 10 आ गया। नाउ यू कैन सी ब्रैकेट्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वो साइन होता है किसका, मल्टीप्लीकेशन का। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 48 by 10, वी विल गेट 480 एंड माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज प्लस 480। So this is our answer, 480. Now we will do part B of the same question. Now here we are having part B. 8 multiplied by 53 is when multiplied by minus 125. So student, to solve this question using a suitable property, what I am doing is I am just shifting the brackets. मैं यहाँ ब्रैकेट वाले नंबर को आगे शिफ्ट कर रही हूँ। एज यू नो, जब हम लोग किसी नंबर को इधर उधर शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आती है। लाइक एग्जाम्पल देखिए 1 into 2 into 3, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 will give us 2 and 2 when multiplied by 3 will give us 6. अब अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को शिफ्ट कर दूं हल्का नंबर्स को इधर उधर, सो लाइक मैं अगर लिखूं 1 into 3 into 2, सो आपको पता आंसर तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स को शिफ्ट किया और आपने देखा कि आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ भी अपने क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ, आंसर को नंबर्स को मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ। सो लाइक आई एम राइटिंग इट हियर एज 8 into minus 125 into 53। मैंने यहाँ थर्ड प्लेस में जो नंबर है माइनस 125 को उसको लिख दिया मैंने सेकंड प्लेस में, ओके। नाउ अब ये जो हमने शिफ्टिंग की किसी पर्पस से की होगी बेटा, तो यहाँ पर्पस मेरा ये था कि जब मैं 8 को पहले माइनस 125 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि बहुत इजीली जब हम दूसरों से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो लाइक आपको दिख रहा है 8 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000, ओके, -1000, ठीक है। तो
बस पर्पस यही था कि ऐसा नंबर लेके आना बेसिकली, या तो वो 10 हो या 100 हो जाए या 1000 आ जाए, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं या 4 नंबर्स हैं तो आप उसमें हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आप उनको एक साथ लेके आइए जिसका मल्टीप्लाई करके 10 या 1000 या 100 या फिर टेंस वाली जो डिजिट होती है वो बच जाए। तो बस यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिट को शिफ्ट किया एंड देन 8 when multiplied by 125 will give us 1000 and with the minus sign we have here the minus sign. Now remaining क्या हो गया यहाँ पे, minus into 53. Now 1000 when multiplied by 53 you can easily say it is equal to the 53,000 of minus, because minus plus is minus, so minus 53,000 is our आंसर। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन से हमने यूज की आपको पता है, जब हम ब्रैकेट्स को शिफ्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। सो वी हैव टू राइट हियर यूजिंग एसोसिएटिविटी। ओके, नाउ वी आर डूइंग पार्ट सी। Now this is our part C. 15 multiplied by minus 25 into minus 4 into minus 10. So आपको यहाँ दिख रहा है 4 नंबर हमारे पास हैं इन द मल्टीप्लीकेशन। अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को जस्ट हम लोग को नंबर्स क्या करना है, शिफ्ट करना है, सो दैट हम लोग के पास ऐसा नंबर बन जाए, तो 10 हो जाए, 1000 या 100 इनमें से। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं 25 को डायरेक्टली 4 से पहले मल्टीप्लाई करूँ तो 25 4 जो कितना होता है, 100 होता है, और बाकी मैं 150 को फिर 10 से कर दूंगी तो इट विल गिव अस 150 एंड फिर इजीली हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ बेटा, फर्स्ट आई एम राइटिंग -25 इंटू -4, ब्रैकेट्स जस्ट हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, इंटू अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 15, ऐसे ये ब्रैकेट में नहीं है बट हम यहाँ से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन इट्स वैल्यू, एंड -10। नाउ यू नो दैट व्हेन 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल गिव अस 100 एंड साइन बताइए क्या लगेगा, माइनस माइनस विल बी ऑफ प्लस, सो प्लस 100 हमारा आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 15 when multiplied by minus 10 will give us minus 150. Now you can easily write its answer. 100 when multiplied by minus 150 it will give us minus 150 and then 20. So minus 15,000 will be our answer. And if I talk about the property we have used is again associativity. Okay, just write it. Complete आप इसे लिखेंगे using associativity. Okay, now this is our part D, -41 when multiplied by 102. So student इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 102 को स्प्लिट करके राइट करेंगे। ओके, लाइक -41 मल्टीप्लाई बाय 102 को स्प्लिट कीजिए 100 प्लस 2 में, है ना, 100 प्लस 2 इज 102। नाउ अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा, तो आपको पता है जब आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों एक साथ यूज करते हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहते हैं। सो वी विल राइट है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नाउ अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, पहले हम लोग -41 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड देन हम लोग -41 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो देखिए -41 इज फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, देन हम ये वाला साइन प्लेस करते हैं जो भी यहाँ ब्रैकेट के बीच में होता है तो उसे प्लेस करेंगे हम, देन -41 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ यू नो -41 when multiplied by 100 it will give us -4100. Now when -41 is multiplied by 2 it will give us -82. Now we can write it as 4100 plus minus is -82, and you know that minus minus is plus, so we have to add them. So 4182 and the sign will be of the greater digit which is of minus, so the answer is -4182. Students, you can also check your answer by directly multiplying -41 by 102. Now students, these are the remaining part of the question number 5. In the part E you can see that it is similar to the part A. Like in this part we have two terms over here and you can see in the two terms we are having 625 as common. So बिल्कुल part A की तरह आप इसे सॉल्व करेंगे ना। पार्ट F अगर आप देखें तो हमने जो पार्ट D किया था बिल्कुल ऐसे ही था, उसमें वहाँ पे 100 प्लस 2 था, यहाँ 50 माइनस 2 है,
ठीक है, तो आप इसे भी पार्ट डी की तरह सॉल्व करेंगे। और पार्ट जी में भी मैं आपको बताऊं, पार्ट डी की तरह ही सॉल्व होगा ये भी। -17 इंटू -29 को स्प्लिट करेंगे आप कैसे? -29 को आप स्प्लिट कर सकते हैं बेटा -30 प्लस 1 में। तो -29 को स्प्लिट करके लिखेंगे आप -30 प्लस 1, एंड फिर 17 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, एंड देन -17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो इस तरीके से आप ये रिमेनिंग पार्ट अपने आप से ट्राई करेंगे। नाउ वी आर डूइंग पार्ट एच। पार्ट एच में अगर आप देखें, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, -57 इंटू -19। मैं यहाँ कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ये 57 अकेला लिखा हुआ है, इसे मैं लिख रही हूँ 57 इंटू 1, बिकॉज 57 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देर इज नो चेंज इन द वैल्यू। नाउ एज यू कैन सी वी आर हैविंग हियर 2 टर्म्स अगेन। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई है, आप इसमें से 57 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 57 कॉमन ले लूँ बेटा, 57 कॉमन लूंगी, बट यहाँ पे जो ये है ये -57 है। सो जो माइनस का साइन है -57 और -19, -57 कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस का 1, एंड व्हेन -1 मल्टीप्लाई बाय -19 इट विल गिव अस +19। तो क्या बचा यहाँ पे +19। नाउ प्लस 57 जा चुका है कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे +1। नाउ 57, 19 plus 1 is 20, so 20 over here, and in between them we have multiply sign. Now 7 into 2 is 40, 5 to the 10 or 1, 11, 100, 140. Okay, 1140 is our answer. Now we are moving to question number 6. Now here we have question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What it means कि फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, किसी चीज को फ्रीज किया जा रहा है, और उसमें जो हमारा रूम टेम्परेचर है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, उसे लोड कर रहे हैं, दैट मीन्स उसे कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, किस रेट से? 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। दैट मीन्स अगर अभी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो नेक्स्ट जो आवर होगा उसमें टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज उसको लोड कर रहे हैं किस रेट से? 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से। तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। तो स्टार्ट होने के 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है जिसमें कि 40 डिग्री सेल्सियस हम लोग का रूम टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर को लोड किया जा रहा है, घटाया जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 10 घंटे बाद वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो चलिए, इनिशियल जो हम लोग का टेम्परेचर था, या बोल सकते हैं जो रूम टेम्परेचर था, वो कितना था हम लोग का? रूम टेम्परेचर वाज 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है उसको लोड किस रेट से कर रहे हैं? 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से कर रहे हैं उसको लोड। क्या फाइंड लिखेंगे हम लोग? चेंज, जो चेंज आ रहा है, या बोल सकते हैं आप रिडक्शन, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर एवरी आवर। हर आवर के बाद कितना चेंज आ रहा है हम लोग का? -5 डिग्री सेल्सियस। बेटा क्यों -5 लिखा? यहाँ क्वेश्चन में तो +5 दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे -5 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे लोअर्ड बोला गया है ना, आपको बताया गया बिलो, लोअर्ड, रिड्यूस, इन सब के लिए हम माइनस वाले इंटीजर्स में लिखते हैं। तो चेंज कितना हो रहा है हम लोग का? रिडक्शन में जा रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर इनिशियली था 40 डिग्री सेल्सियस, और उसमें चेंज हर घंटे जो आ रहा है वो आ रहा है -5 डिग्री सेल्सियस का। अब देखिए, हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज अगर मुझे कितने का निकालना है, हमें फाइंड करना है 10 घंटे का, है ना। 10 आवर्स का हम लोग निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में कितना चेंज आएगा? अगर 1 आवर में इतना चेंज आ रहा है -5, तो 10 आवर्स का कितना होगा? हम लोग क्या करेंगे? -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 10 से। आपको पता है 1 आवर का पता है, तो 10 का निकालना हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। So -5 when multiplied by 10 it will give us -50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे में जो चेंज आ रहा है वो है कितना? -50 डिग्री सेल्सियस। सो अगर मैं फाइनल टेम्परेचर बोलूं, क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस,
और 10 घंटे बाद जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना है, कितना चेंज हो रहा है बेटा, -50। तो इनिशियली 40 था, अब रिडक्शन होने के बाद वो हो गया -50 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 40 प्लस -50, तो इसे लिखेंगे हम 40 -50 है ना, एंड 40 -50 विल गिव अस -10 डिग्री सेल्सियस। सो फाइनल जो टेम्परेचर आएगा हम लोग का 10 आवर्स के बाद वो कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 in a class test containing 10 questions. 5 marks are given for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted. एक क्लास टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है और जब अगर बच्चे ने क्वेश्चन अगर ठीक अटेम्प्ट किया है, करेक्ट आंसर दिया है, तो 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं उसे। अगर स्टूडेंट ने आपका इनकरेक्ट आंसर दिया है तो उसके लिए -2 अवॉर्ड किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट अगर उसने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए 0 गिवन है। सो यहाँ हम लोग के पास 3 पार्ट्स हैं इसके बेटा। फर्स्ट पार्ट में मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो मोहन जो बच्चा है उसने क्या किया, 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, आपको उसका टोटल स्कोर करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। मार्क्स गिवन फॉर द 1 करेक्ट आंसर, जब किसी बच्चे ने 1 करेक्ट आंसर दिया है तो कितने मार्क्स अवॉर्ड किए जा रहे हैं उसके लिए, 5। अब मोहन की बात करें तो उसने कितने आंसर्स करेक्ट किए, 4। सो 4 करेक्ट आंसर कितने मार्क्स हो जाएंगे बेटा, देखिए 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 है, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने हो जाएंगे, 4 into 5 या 5 into 4, दैट इज 20। सिमिलरली 1 रॉन्ग आंसर के लिए अवॉर्ड किए जा रहे हैं -2। तो बच्चे ने कितने अवॉर्ड कितने इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए, 6। सो 6 के लिए कितना होगा, -2 into 6, ठीक है, -2 into 6 विल बी इक्वल टू -12। अब हमें इसका टोटल स्कोर निकालना है मोहन का। सो करेक्ट आंसर उसके लिए उसको मार्क्स मिले हैं 20 एंड इनकरेक्ट के लिए टोटल मार्क्स कितने मिले, -12। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 20 प्लस -12 एंड 20 प्लस -12 विल बी इक्वल 20 -12 एंड विच इज इक्वल टू 8। Now in the same way आपको फाइंड करना है रेशमा के लिए। उसने 5 करेक्ट आंसर किए हैं, 5 ही इनकरेक्ट आंसर किए हैं और आपको बताना उसका स्कोर क्या है। आई एम डूइंग पार्ट 3 फॉर यू। हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। देखिए उसने 2 करेक्ट आंसर दिया, 5 इनकरेक्ट दिया, 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, दैट मीन्स उसने 3 क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, दैट मीन्स 3 क्वेश्चन के लिए तो उसको 0 मार्क्स मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर के लिए तो उसने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं। 1 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल रहे थे 5, तो 2 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल जाएंगे, 5 into 2, दैट मीन्स 10। सिमिलरली 5 उसने रॉन्ग आंसर दिए थे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स मिल रहा था -2, तो 5 रॉन्ग आंसर के लिए कितने हो जाएंगे, -2 into 5, दैट मीन्स -10। अब हमें ये भी पता है कि उसने 3 जो क्वेश्चन हैं वो उसने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, तो 3 into 0 अगर आप करके दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 into 0 विल गिव यू 0। तो यहाँ मैंने नहीं किया, अगर आपको करना है तो वो उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड फिर आप क्या करेंगे, टोटल स्कोर उसका फाइंड करेंगे, 10 -10, क्योंकि ये करेक्ट आंसर के लिए है, ये इनकरेक्ट के लिए है, और फिर नेक्स्ट उसका अनअटेम्प्टेड के लिए भी आप 0 जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो -10 प्लस -10 प्लस 0, 10 प्लस -10, दैट मीन्स 10 -10 एंड 10 -10 इज इक्वल टू 0। तो जो हीना ने स्कोर किया है वो उसका मार्क्स कितने हैं, 0 मार्क्स है। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. एक कंपनी है सीमेंट की, उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है अगर वो कंपनी व्हाइट सीमेंट सोल्ड करती है, और उसे ₹5 का लॉस होता है अगर वो कंपनी ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है। तो इन द पार्ट 1 द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. एक मंथ में कंपनी 3000 बैग्स सेल कर रही है व्हाइट सीमेंट के एंड 5000 बैग्स सेल कर रही है ग्रे सीमेंट के। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट फाइंड कीजिए और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस फाइंड करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं बेटा। प्रॉफिट को हम डिनोट किया है पॉजिटिव इंटीजर से एंड लॉस को डिनोट किया हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर से। सो आपको पता है कि व्हाइट जो अगर हम लोग व्हाइट बैग सोल्ड कर रहे हैं, एक बैग
तो उसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, ₹8 का। और सिमिलरली उसने कितना सोल्ड किया है बेटा, 3000 बैग्स सोल्ड किए हैं उसने व्हाइट सीमेंट के। अभी आपने पार्ट ए का क्वेश्चन में देखा कि उसने 3000 बैग सोल्ड किए थे व्हाइट सीमेंट के। सो 1 बैग की कॉस्ट कितने प्रॉफिट हो रहा है 1 बैग में, ₹8 का। तो 3000 बैग्स में कितने होंगे, 8 into 3000 दैट मीन्स 24,000। सिमिलरली लॉस हो रहा है उसे ग्रे सीमेंट सोल्ड करने में, और कितने का लॉस हो रहा है, ₹5 का। सो ₹5 को हमने माइनस करके दिखाया है। सिमिलरली टोटल हम लोग के कितने बैग्स सोल्ड हुए ग्रे सीमेंट के, 5000। तो कितने का लॉस हो गया 5000 बैग्स में, -5 into 5000 दैट मीन्स 25,000। अब हमें निकालना टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना अर्न किया है, तो हम प्रॉफिट को लॉस से ऐड कर देंगे। 24,000 में जब आप प्लस करेंगे -25,000 यू विल गेट -1000, इजंट। अब आप देख रहे हैं -1000 से क्या मतलब है कि उसे क्या हुआ, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उसे लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है उसे, ₹1000 का लॉस हुआ है। Okay, now we are moving to the part B. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स वो कंपनी सेल करे तो ना ही उसे प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। और नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स आपको दे रखे हैं, कितने सोल्ड हुए, 6400 बैग्स सोल्ड हुए ग्रे सीमेंट के। चलिए आंसर देखेंगे इसका। सो लॉस जो 1 बैग पे हो रहा है व्हाइट ग्रे सीमेंट पे, वो कितना हो रहा है, ₹5 का लॉस हो रहा है, इस वजह से माइनस शो किया। तो कितने ग्रे सीमेंट बैग्स कितने सोल्ड किए थे उसने, 6400। तो कितना लॉस हो गया उसमें, -5 into 6400, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। सो कितना आ रहा है इसका, -32,000। ये ग्रे सीमेंट के लिए। अब हम लेट कर रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट कितना सोल्ड हो रहा है, X सोल्ड हो रहा है। अब व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, ₹8 का। तो कितने अब टोटल प्रॉफिट अगर हमें फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, X को 8 से मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने यहाँ किया। लॉस ₹5 का हो रहा है एक बैग पे, और टोटल बैग्स कितने थे, 6400। तो हमें टोटल अगर लॉस निकालना, हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली फॉर द प्रॉफिट, 1 बैग पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, ₹8 का। और टोटल नंबर ऑफ बैग्स है कितने, X। Therefore X is multiplied by 8. So X when multiplied by 8 give us 8X. अब हमें चेक करना है कि वो कंडीशन बताइए जिसमें ना ही तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो वो कंडीशन में ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस को जब ऐड करके 0 आ रहा हो, तो इस कंडीशन में ना ही तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा ना ही लॉस। तो प्रॉफिट अर्न हमने फाइंड किया है 8X, एंड लॉस इंकर्ड जो हुआ है वो कितना हुआ है, -32,000। दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये -32,000 है, जब इज इक्वल टू के सेट जाएगा तो ये हो जाएगा +32,000। सो 8X इज इक्वल टू 32,000 एंड X इज इक्वल टू 4,000। सो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने आ जाएंगे इसमें, 4,000, जो कि ये इतने सीमेंट बैग्स हैं बेटा कि ना ही कंपनी को लॉस हो ना ही प्रॉफिट। ओके, नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9. Replace the blank with an integer to make it a true statement. So we have 4 parts of this question and I'm doing 2 for you. The remaining you have to do on your own. Now part A is -3 when multiplied by dash is equal to 27. So as you know 3 when multiplied by 9 will give us 27. Simple. But if you see the sign, minus plus will give us minus. But here we have plus 27. So we have to multiply it by -9 to make it plus. Okay. In the same way, 12 when multiplied by 11 will give us 132. Okay. But the sign, as you can see, plus minus is minus, but we need plus 132. So I have to make it -11. So -11 when multiplied by -12 is equal to 132. Students, now we have completed our exercise 1.3. And in the homework part, you have to do all the remaining parts of each question that we have done today. Okay, that's all for today. Thank you.